কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ মাজত আছে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি। তেখেত হৈছে ডক্টৰ সুৰেশ ঋতুপৰ্ণ। সুৰেশ ঋতুপৰ্ণ ডাঙৰীয়া বিদেশত প্ৰধানতঃ ত্ৰিনিদাদ টবেগো এনেকুৱা আমাৰ যিখিনি ৰাষ্ট্ৰ আছে সেই ৰাষ্ট্ৰসমূহ তেখেতে ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ এগৰাকী কূটনীতিবিদ হিচাপে তেখেতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। তদুপৰি তেওঁ কবি আৰু এগৰাকী শিক্ষাবিদ। তেখেতে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা হিন্দীৰ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ লগতে তাৰ পৰা তেওঁ ডক্টৰেট উপাধিও লাভ কৰে। তাৰপিছত তেওঁ শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত হিন্দু কলেজত। তেখেতৰ এক বিশেষ কৃতি হৈছে হিৰোশ্বিমা কি য়াদ এৱম অন্য কবিতাই। এই কবিতা পুথিখনৰ এটা বিশেষ মহত্ব আছে। এয়া হিৰোশ্বিমাৰ স্মৃতিত ৰচিত কবিতা। আপোনালোকক আমি এইটো কথা মনত পেলাই দিওঁ যে আগষ্টৰ 6 তাৰিখটো হিৰোশ্বিমা দিৱস হিচাপে বিশ্বৰ সৰ্বত্ৰে পালন কৰা হয়। অৰ্থাৎ 1945 চনৰ এই বিশেষ দিনটোতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত হিৰোশ্বিমাৰ ওপৰত প্ৰথমটো আণৱিক বোম পেলোৱা হৈছিল। এই হিৰোশ্বিমা দিৱসৰ উদ্দেশ্য হৈছে বিশ্ব ইতিহাসৰ সেই বিশেষ দিনটোত হিৰোশ্বিমাত যিসকলে প্ৰাণত্যাগ কৰিছিল সেই দুৰ্ভগীয়াসকলৰ স্মৃতি স্মৰণ কৰা আৰু সেই পাৰমাণৱিক বোমাৰ বিভীষিকাই জাপানৰ ভালেকেইটা প্ৰজন্মক এই পাৰমাণৱিক বোমাৰ তাৰ যি বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া, সেই প্ৰতিক্ৰিয়াই তেওঁলোকক কেনেকৈ তিল তিলকৈ কষ্ট ভোগাইছিল সেই বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰা আৰু বিশ্বৰ সৰ্বত্ৰতে পাৰমাণৱিক নিৰস্ত্ৰীকৰণৰ হকে আহ্বান জনোৱা, যাতে পৃথিৱীখন আৰু দুনাই এনে সংঘাতময় পৰিস্থিতিৰ পৰা যাতে মুক্তি লাভ কৰে। আহক, আমাৰ লগত আজি তেখেত ডক্টৰ সুৰেশ ঋতুপৰ্ণ ডাঙৰীয়া আছে। আমি তেখেতৰ লগত হিন্দীতে বাৰ্তালাপ কৰিম। আমাৰ লগত আছে আমাৰ সহযোগী ডক্টৰ উজ্জ্বল ডেকা বৰুৱা, তেখেত হিন্দী বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক। নমস্কাৰ। আৰু মই কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ নিভাৰাণী ফুকন। আমি সকলোৱে আপোনালোকক এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক, আজি এই চেগতে আমি 6 আগষ্ট হিৰোশ্বিমাৰ স্মৃতি দিৱসক আমি সেই দিৱসৰ প্ৰতি আমি স্মৃতি তৰ্পণ কৰোঁ। তাত যিসকলে ভুক্তভোগী আছে তেখেতসকলক স্মৃতি তৰ্পণ কৰি আৰু তাৰ লগতে আমি ডক্টৰ সুৰেশ ঋতুপৰ্ণ তেখেতৰ বিদ্যায়তনিক জীৱন, তেখেতৰ বিদেশত তেওঁ যিটো উপলব্ধি, বিশেষকৈ জাপানী সমাজ সভ্যতাৰ প্ৰতি তেওঁ যিটো উপলব্ধি, সেই বিষয়ে আমি কিছু কথা জানো। भारतीय होकर वहाँ में हमारे जो सभ्यता संस्कृति के ध्वजा आपने कैसे लहराए? क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि जो भारतीय विदेश में हमारे भाषा साहित्य के प्रचार करते हैं, वो वहाँ के लोगों को पूरे भारत का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। सो सर, आपके वैसा उपलब्धि कैसा है? आपने तो विदेश में अनेकों जगह आप गए थे, वहाँ में आप कूटनीतिज्ञ, आप बहुत सारे आपको उपलब्धियां बहुत हासिल की है आपने। सो इस विचार में कुछ आप अब बताइए। सबसे पहले तो मैं कृष्णकांत हैंडिक राजकीय मुक्त विश्वविद्यालय का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज अपने स्टूडियो में बुलाकर के मेरे जीवन के कुछ अनुभव सुनना चाहा है, रिकॉर्ड करना चाहा है। चीज़ों को बताना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक लंबी सड़क है यादों की, अनुभवों की, उन सबको कम से कम शब्दों में कहना है। पहले तो मैं ये बताऊं कि सन 1965 से सन 1970 तक के 5 साल मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कॉलेज हिंदू कॉलेज का छात्र था और उसके बाद 1970 में
मैं उसी विश्वविद्यालय के अंदर, उसी कॉलेज के अंदर लेक्चरर हो गया था और 2002 तक वहां पढ़ा था। मैं शायद बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली लोगों में से हूं कि जिनको बहुत अवसर मिले। उसके लिए मैं योग्य था या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं उन कामों को अच्छे से कर सकूं। हिंदू कॉलेज में मैं जब पढ़ने गया था तो 16 जुलाई 1965 को मेरी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण दौर आया, जब पहली बार मैं वहां पर फिजी से हिंदी पढ़ने आए एक व्यक्ति श्री विवेकानंद शर्मा से मिला। वो मेरे सहपाठी बने और मेरे साथ पढ़े। हमने सोचा कि हमारे दक्षिण भारत से कोई व्यक्ति आया है, वैसा ही लंबा सांवला सा रूप था उनका और हिंदी बहुत अच्छी बोल रहे थे। हम सोच ही नहीं सकते थे कि ये हमारे नहीं है, विदेशी हैं। तभी कुछ लोग आए जो हमारी रैगिंग करने लगे अंग्रेजी में, तो उन्होंने उनको डांटा और बहुत अच्छी अंग्रेजी में बोल के डांटा और फिर कहा कि मैं 20,000 किलोमीटर दूर से आपकी भारत की सभ्यता को देखने समझने पढ़ने आया हूं और आप अंग्रेजों की छोड़ी हुई परंपरा को निभा रहे हैं। तो हमको झटका लगा और पहली बार हमने जाना कि फिजी नाम का कोई देश है और जहां पर इतने सारे भारतवंशी लोग रहते हैं, उससे पहले हमें नहीं मालूम। तो इस तरह से फिजी का जो परिचय था उसने मुझे उस समस्या की ओर ले गई जहां से विदेशों में भारतीय लोगों को जाने अनजाने ले जाते थे अंग्रेज लोग और वहां उनसे मजदूरी कराते थे। एक नया पूरा काला इतिहास मेरे सामने खुला और वो एक तरह की वो पहली ईंट थी जिसने मुझे विदेशों में हिंदी प्रचार प्रसार या भारतीय संस्कृति के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं अपने छात्रों को ये बताना चाहूंगा कि आखिर ये हिंदुस्तानी लोग भारत से इतने हजारों मील दूर गए कैसे। आज हम डायस्पोरिक लिटरेचर की बात करते हैं, डायस्पोरा की बात करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते बहुत सारे लोग कि डायस्पोरा बना कैसे और डायस्पोरा कब नहीं था, हमेशा रहा है, आज भी है। और डायस्पोरा तो सीधे सीधे उसका अर्थ होता है कि वो एक तरीके का विस्थापन है, माइग्रेशन है। आज मान लो मैं आसाम में बैठा हूं और दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली से आसाम काम करने के लिए आ जाऊं तो मैं दिल्ली से विस्थापित हो गया। इसी तरह से कोई व्यक्ति यहां से चल के फिजी पहुंचा, ट्रिनिडाद पहुंचा, गयाना पहुंचा, सूरीनाम पहुंचा, तो भारत से निकल के गया, उसकी जड़ भारत में है लेकिन विस्थापित हुआ। तो ये सारा जो विस्थापन की प्रक्रिया है ये हर पल चलती है और पूरी दुनिया, पूरी संस्कृति, पूरा समाज इस दौर से गुजरता है। अगर आप गौर करें तो कालिदास को लेकर लिखा गया मोहन राकेश का अगर आप नाटक पढ़ें तो आप पाएंगे कि कालिदास एक गांव में है, प्रकृति को देखता है, अपनी रचनाएं करता है, लेकिन तब उसको उज्जैनी बुलाया जाता है तो वो जाना नहीं चाहता, कहता यही मेरा सब कुछ है। लेकिन उसकी प्रेमिका मल्लिका समझाती कि नहीं तुम जाओ, तो वो अपने प्रदेश को छोड़कर उज्जैनी जाता है। तो ये क्या, ये भी तो डायस्पोरा हो गया, ये भी विस्थापन हो गया और वहां जाकर के उसने जो काम किया तो पूरी दुनिया ने जाना। तो ये दौर चलता है। लेकिन ये जो परंपरा बनी हमारे भारतीयों को बाहर ले जाने की, ये बड़ी दुखद थी। दुखद क्यों थी कि 1834 में अमेरिका में अब्राहम लिंकन के जमाने में एक नियम आया कि जो अफ्रीकी काले गुलाम पकड़ करके लाए गए हैं वो अब आजाद हैं, जिसको इमेंसिपेशन कहते हैं। ये जितने अंग्रेज लोग थे इनके उपनिवेश थे अलग अलग जगह पे, अंग्रेजों के थे, डच लोगों के थे, फ्रेंच लोगों के थे, ये खास तौर से थे। तो इन सब देशों के अंदर गन्ने की खेती कराने के लिए वो अफ्रीका के लोगों को पकड़ के ले जाते थे
और उनसे खेती करते थे, उन पर जुल्म उठाते थे। तो अचानक जब आंदोलन हुए और ये हो गया कि नहीं अब ये आजाद हैं, सो गुलामी की प्रथा खत्म हो गई, तो इन सारे देशों में मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, फीजी, उधर दक्षिण अफ्रीका, इन सब देशों के अंदर मजदूरों की बहुत कमी हो गई। और चूंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी, तो उन लोगों ने भारतीय लोगों को धोखे से वहां भेजना शुरू किया, ये कह करके कि जिन देशों में आप जाएंगे, पत्थर को उठाएंगे तो नीचे सोना मिलेगा। और इस तरह से हमारे हजारों लाखों लोग धीरे धीरे करके इन सब देशों के अंदर जाते रहे। 1835 में पहली बार मॉरिशस में लोग गए और फिर 1870 तक फिजी में जाते रहे। उसके बाद 1916 में महात्मा गांधी, हमारे महामना मदन मोहन मालवीय, इन गोपाल कृष्ण गोखले, तोताराम सनाट, इन लोगों की मदद से ये प्रथा खत्म हुई और ये सारे लोग इन सब देशों के अंदर अपने अपने परिवारों के साथ रहने लगे। इस तरह से हमारा ये डायस्पोरा पूरी दुनिया में फैल गया। चूंकि ये लोग उत्तर प्रदेश, बिहार के गांवों से गए थे और इनकी भाषा बोली जो थी वो हिंदी थी, भोजपुरी थी, अवधी थी, तो इस तरह से इतने साल पहले दुनिया से बाहर हिंदी के चरण पड़े और हिंदी चारों तरफ धीरे धीरे विकसित होती गई। तो जो ये सवाल करते हैं कि विदेशों में हिंदी कैसे, तो उसका जवाब है ये कि विदेशों में इन मजदूरों के सहारे हिंदी पहुंची थी। फिर धीरे धीरे वे लोग अपने अपने देश में आजाद हुए, संपन्न हुए, लिटरेचर लिखा जाने लगा, तो ये डायस्पोरिक लिटरेचर आया। और उसके सबसे बड़े रचनाकारों के अंदर मॉरिशस के अभिमन्यु अनंत माने जाते हैं, फिजी के कमला प्रसाद मिश्र माने जाते हैं। और जगह भी लिखा गया, थोड़ा लिखा गया, लेकिन इन जगहों पे ज्यादा लिखा गया। तो आज हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर डायस्पोरिक लिटरेचर को लेके हिंदी के डायस्पोरा का लिटरेचर जो लिखते हैं, प्रवासी साहित्य जिसे कहते हैं, वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से फिजी के एक मित्र के मिलने के नाते मैं डायस्पोरा से परिचित हूँ। लेकिन तब मैंने इस सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इन देशों को देख पाऊंगा। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुझे 1982 के अंदर फिजी की एक संस्था ने बुलाया फिजी के लिए कुछ काम करने के लिए, और पहली मेरी विदेश यात्रा फिजी में हुई जहां भारतीय लोग रहते थे। और वहां के बहुत बड़े कवि कमला प्रसाद मिश्र से मुलाकात हुई, उनकी कविताएं लाया, उस पर आलोचनात्मक किताब लिखी, पहली बार वो किताब छपी। इस तरह से मेरा संपर्क हुआ। फिर 1988 में भारत सरकार ने मुझे एक डिप्लोमेट के रूप में ट्रिनिडाड एंड टोबैगो भेजा, भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा के काम के लिए। तो मैं ट्रिनिडाड पहुंचा, और वो हिंदुस्तान से बहुत दूर है। दिल्ली से हम अमेरिका जाते हैं, न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से फिर 7-8 घंटे की फ्लाइट के बाद हम ट्रिनिडाड पहुंचते हैं। वो एक तरीके से बिल्कुल दूसरा हिस्सा है। तो मैं वहां गया और वहां धीरे धीरे मैंने ये पाया कि वहां के लोग भारतीय संस्कृति के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन धीरे धीरे उनसे भाषा चली गई है, हिंदी उनसे छीन ली गई, क्योंकि अंग्रेज उपनिवेशवादियों ने इन सब लोगों की भाषा को छीना। क्योंकि हिंदी भाषा उनकी एकता की भाषा थी, उनके विरोध की भाषा थी। तो उन्होंने कहा हिंदी नहीं जानेंगे तो ये सब चीज खत्म हो जाएगी। तो मैंने देखा कि वहां लोग हिंदी पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हैं। तब मैंने वहां अनौपचारिक रूप से अपने हाई कमीशन में हिंदी की क्लासें लगानी शुरू की, और मेरे 12 साल से लेकर 72 साल तक के लोग उस कक्षाओं में आते थे। तभी वहां की जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट इंडीज, उसके वाइस चांसलर से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में हिंदी शुरू करूं। तो मैं तो डिप्लोमेट के रूप में गया, मैं उस तक कैसे जाता, लेकिन मौका और प्रभु की कृपा ऐसी रही कि तभी मेरे एम्बेसडर आए और उन्होंने पूछा 2 प्रोफेसर क्या बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा एक्सीलेंसी, मैं बहुत खुश हूं, आज डॉक्टर रिचबर्ड ने मुझसे वायदा किया है कि अगले साल से वो एक आदमी भारत से बुला करके प्रोफेसर मेरे यहाँ हिंदी का कोर्स शुरू करा देंगे। तो हमारे एम्बेसडर बोले अगले साल से क्यों, इस साल से क्यों नहीं? तो मैं कैसे शुरू करूंगा, रिसोर्स पर्सन कहाँ है? तो बोले आपको नहीं मालूम, डॉक्टर ऋतुपर्णा हिंदी के फुल फ्लेज प्रोफेसर हैं, इनको मैं डिप्यूट करूंगा आपकी यूनिवर्सिटी में और आप हिंदी पढ़ाएंगे। तो 1988 में
पहली बार यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट इंडीज में हिंदी का प्रोग्राम मैंने शुरू किया। ये मेरा सौभाग्य था। 4 साल में रहा, उस देश ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, और मैंने भी बहुत काम किया वहाँ। बहुत मजा आता था उन लोगों के साथ काम करने के अंदर। हिंदी फिल्म संगीत के तो वो दीवाने हैं। वहाँ का रेडियो प्रोग्राम जो है सुबह से रात तक हिंदी गाने सुनाता था, और उसकी शुरुआत वो अंग्रेजी में करते थे। वहाँ के एक बहुत बड़े अनाउंसर थे जो अमीन सयानी जितने पॉपुलर थे। हंस हनुमान सिंह, अभी 4 जुलाई को उनका देहावसान हुआ है, मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, बहुत दुख है मुझे उसका। तो वो प्रोग्राम शुरू करते थे, द मेलोडीज ऑफ इंडिया, और एक उनका प्रोग्राम था फ्रॉम द सिल्वर स्क्रीन। और ये प्रोग्राम ऐसे होते थे कि हर ट्रिनिडाड का आदमी सुनता था, और वो उसकी बड़ी सुंदर आवाज में वो शुरू करते, नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू द ओल्ड मेलोडीज फ्रॉम इंडियन फिल्म्स, नाउ यू सी द फिल्म मदर इंडिया, द सॉन्ग इज दिस, लाइक दिस। तो फिर वो गाना शुरू करते थे। तो मैंने देखा कि वहां हिंदी के गीत सुनते हैं ये लोग, लेकिन उसका अर्थ नहीं मालूम, उसको लिख नहीं सकते। तो मैंने अपनी क्लास के अंदर हिंदी गानों को ही टेक्स्ट बनाया, क्योंकि वो सुनते हैं, उनको पसंद है, लेकिन वो जानना चाहते हैं इसका अर्थ क्या है। तो मैंने उनसे कहा अपने स्टूडेंट से कि आप एक गाना चुन करके मुझे 1 हफ्ता पहले बताइए, अगले हफ्ते हम उसी गाने को क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारा जो ब्लैक बोर्ड होता था वो 2 तरफे ऐसे हो जाता था। तो पहले ही क्लास में जाकर के हिंदी में उस गीत को लिख देता था, और फिर मैं उसको बदल देता था और उनसे कहता अब लिखिए। तो हिंदी लिखने का अभ्यास वो उस गीत से करते थे। फिर मैं कहता अब इस गीत को पढ़िए, तो बोर्ड पर देखकर, अपनी कॉपी देख करके वो पढ़ते थे। फिर मैं उनसे कहता अब गीत को सुनिए। तो ये जितने कंप्रहेंशन जो होते हैं, स्किल जो होते हैं भाषा पढ़ने पढ़ाने के, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, ये 4 होते हैं। तो अब वो सुनते थे गीत, तो मैं टेप रिकॉर्डर पर उस गीत को सुनाता था। फिर मैं कहता था अब आप इस गीत को गाइए। तो सब मिलकर के कोरस की तरह उन गीतों को गाते थे। फिर मैं कहता था एक एक से अब इसका अर्थ बताइए, एक एक लाइन लीजिए। तो वो एक गीत वहां बहुत पॉपुलर है जिसका नाम, वो जो दुलारी फिल्म की बहुत पहले आई थी, सुहानी रात ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे। इसी तरह एक गीत वहां चौधरी का चांद का बहुत प्रसिद्ध है, चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो, ये इतने पॉपुलर हैं कि अभी भी अगर आप टेलीविजन रेडियो कोई खोल लें ट्रिनिडाड का, वहां इस समय मेरे ख्याल है 10-20 FM स्टेशन चलते हैं और सब पे ये गीत चलते रहते हैं। तो आपको ये गीत फिर सुनने को मिल जाएगा। ये इतना महत्वपूर्ण गीत है वहां के लोगों के लिए कि जब मैं गया तो मुझे एक दिन एक इनविटेशन कार्ड मिला, सुहानी रात डिनर, $100 पर प्लेट उसका खर्चा होता था। हमको इनवाइट किया गया था, फ्री में था हमारे लिए। तो मैं गया, तो मैंने कहा ये सुहानी रात डिनर क्या होता है। मैं सोचता रहा, मैंने सोचा आज पूर्णिमा भी नहीं है कि चांद निकले और चांदनी हो और सुहानी रात हो तो ये हो। तो वहां जाने के बाद भारतीय खाना बनाते थे लोग, वो खाते थे, फिर सब लोग बैठ जाते थे और सामने ऑर्केस्ट्रा लगा हुआ है और उस पे एक के बाद एक ट्रिनिडाड के सिंगर गीत गाते थे। तो शुरुआत होती थी हमारे राष्ट्रगीत से, ट्रिनिडाड के राष्ट्रगीत से, और उसके बाद गीत शुरू होते थे सारंगा तेरी याद में, जिस देश में गंगा बहती है, ऐ मेरे वतन के लोगों। ये सारे मेलोडीज जो थी पुराने जमाने की, वो सब एक एक करके लोग सुनाते थे। और आप लोग ये विश्वास नहीं कर सकते हैं कि जो लोग गा रहे हैं इनको हिंदी नहीं आती, इनको इसका अर्थ नहीं मालूम। वो अपने कागज पर रोमन में लिख करके महीनों अभ्यास करके उन गीतों को गाते थे पूरे म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा के साथ। और अंतिम जो 2 गीत होते थे वो होते थे चौधरी का चांद, और लास्ट गीत होता था सुहानी रात ढल चुकी। तो इस तरह से वो सुहानी रात डिनर था। तो मैंने बाद में एक आर्टिकल लिखा कि ट्रिनिडाड के पास 2 नेशनल सॉन्ग हैं, एक उनका नेशनल एंथम है और उनका एक दूसरा नेशनल सॉन्ग है जो सुहानी रात ढल चुकी है। एनीवे, कहानी बहुत लंबी है, समय कम है। तो इस तरह से मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ। तो ट्रिनिडाड से लौटने के बाद भारत सरकार ने फिर मुझे मॉरिशस भेज दिया। मॉरिशस में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट भारत सरकार ने बनाया था, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट।
उसके अंदर जवाहरलाल नेहरू चेयर ऑफ इंडियन स्टडीज शुरू हुई थी, तो मैं पहला प्रोफेसर होके गया और मैंने वहां देखा कि वहां बीए तक हिंदी पढ़ाई जाती है और एमए पढ़ने के लिए लोग भारत आते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आज एमजीआई में लेक्चरर हैं जो भारत से पढ़ करके भी गए थे। तो मुझे कुछ लोग मिले जो बोले कि सर हमारे यहाँ एमए नहीं है, हम गरीब लोग हैं, भारत नहीं जा सकते, तो हम तो एमए नहीं कर सकते कभी। तो मैंने डायरेक्टर जो थे उस समय एमजीआई के, उनसे बात की कि हाँ आप अंग्रेजी आप एमए क्यों नहीं शुरू करते। तो उन्होंने कहा रिपन जी अब कौन पढ़ाएगा, क्या कोर्स बनेगा, ये बड़ी दिक्कत है। मैंने कहा मैं ही शुरू कीजिए। तो हमने एमजीआई में पहली बार एमए हिंदी शुरू की और सन 2000 में वहाँ एमए शुरू हो गया। उस एमए में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से काफी सारे लोग लेक्चरर हो गए एमए करके। जो विश्व हिंदी सचिवालय का नाम अगर आपने सुना हो मॉरिशस में, उसकी जो डायरेक्टर है आजकल माधुरी, वो हमारी स्टूडेंट थी, उसको एमए प्रेस की पहली स्टूडेंट थी। तो इस तरह से मॉरिशस के फिर साहित्यकार अमनी ओनत से मैं पहले परिचित था, उनसे मिले। तो डायस्पोरिक लिटरेचर भी काफी काम हम लोगों ने किया। जब मैं मॉरिशस में काम कर रहा था तो मुझे जापान के लोग तलाश रहे थे कि मैं कहाँ हूँ। चिट्ठी दिल्ली जाती थी, लौट जाती थी। तो टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज जापान की एक बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर 1908 में, आज हिसाब लगाएं तो 117 साल पहले हिंदी, उर्दू, फारसी के रूप में हिंदुस्तानी पढ़ाई जाती थी। और इस तरह से वहां पर हिंदी का, फारसी का, उर्दू का काम शुरू हुआ। क्योंकि हम आजाद नहीं थे तब, हम 47 में आजाद हुए, तो उससे पहले जो हिंदी बोली जाती थी उसको हिंदुस्तानी बोलते थे। हिंदुस्तान की भाषा हिंदुस्तानी, ठीक है, और वो उर्दू फारसी मिश्रित होती थी। इसलिए इन देशों के अंदर जो हिंदी पढ़ाई जाती थी वो इसी तरह की होती थी। तो जापान के जो प्रोफेसर थे ताकेशी फुजी, वो 82-84 में हिंदू कॉलेज में मेरे स्टूडेंट थे। तो उनको मेरा कुछ अंदाजा था कि अगर मैं कभी हेड हुआ तो मैं उनको बुलाऊंगा। तो सन 2000 में वो हेड हुए। 2002 में उनको हिंदी ऑफिस अध्यापक बुलाने का जब जिम्मा आया प्रोफेसर, तो उन्होंने मुझे याद किया। इस तरह से मैं जापान पहुंचा। तो मैं पहुंचा 2 साल के लिए, लेकिन मेरी नौकरी, मुझे छुट्टी नहीं मिली कॉलेज से, तो मैंने रिजाइन किया और मैं जापान गया। लेकिन ये जापान के प्रोफेसर फुजी की या उन लोगों का मेरे ऊपर बड़ा उपकार है कि उन्होंने देखा कि ये तो रिजाइन करके आ गए, अगर लौट के जाएंगे तो क्या नौकरी करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो वो मेरा कार्यकाल बढ़ाते रहे और मैंने भी वहां जो काम किया उससे पहले कभी हुआ नहीं। मेरे रहते सन 2006, 2008 और 2012 में 3 बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर लुत्से, ब्रिस्की, मारिया, जितने भी नाम है, मारिया लाफ्रीदी, ये सारे लोग आए थे और उन्होंने ट्रिनिडाद को देखा, जापान को देखा। तो इस तरह से जापान में मैंने बच्चों को पढ़ाया। तो जो आपने सवाल किया कि जापान में हिंदी का क्या मतलब है, तो वो परंपरा थी उस यूनिवर्सिटी की जो 1908 में शुरू हुई थी और उसमें हमेशा सन 70 के आसपास से एक भारतीय प्रोफेसर जाता था हिंदी पढ़ाने के लिए। वो इसलिए जाता था कि जापानी लोगों का ये कहना था कि हमारे बच्चे जापानी तो हैं और वो हिंदी सीख लेते हैं, लेकिन बातचीत कैसे करें। उनको सीखने के लिए उनको कोई भारतीय चाहिए ताकि वो भाषा के उतार चढ़ाव को, सुर लहर को, तान अनुतान, इसको वो सिखा सके। तो सिर्फ भाषा यही तो नहीं है कि मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, लेकिन कहते अरे अभी तो तुमने खाना नहीं खाया। तो हमारे जो जेस्चर्स हैं वो भाषा के साथ जुड़े होते हैं। तो उनके मन में ये था कि कोई भारत का कोई हिंदी जानने वाला होगा तो वो बताएगा। इसलिए वहाँ हिंदी के प्रोफेसर बुलाए जाते रहे। और खास तौर से जब भारत आजाद हो गया 47 के बाद और 1952 में हमारी ट्रीटी हुई जापान से आपस में एक्सचेंज कंट्रोल की, जब जवाहरलाल नेहरू ने एक हथनी वहां उनको जू के लिए दी थी, उसका नाम इंदिरा था, वो तब से शुरू हुआ था। तो मैंने वहां पढ़ाया। तो मैं 10 साल तक वहां पर हिंदी का काम करता और मैं
52 के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ज्यादा काम करने वाला प्रोफेसर हूँ अभी तक। ज्यादातर लोग अब 3 साल या 5 साल के लिए जा पाते हैं। तो इस तरह से जापान में मैंने पढ़ा। तो जापान का जो पढ़ाना है विदेशियों को हिंदी का, वो अनुभव बिल्कुल अलग है। और उसका एक कारण ये है कि मैंने प्रोफेसर फूजी से पूछा कि भाई मेरा टेक्स्ट बुक क्या है, मैं हिंदी क्या पढ़ाऊंगा, उनको कैसे पढ़ाऊंगा। तो हंस करके बोले हमारे यहाँ कोई टेक्स्ट बुक नहीं होती है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी हिंदी बोलना सिखाइए, बातचीत करना सिखाइए, चीजों को अप्रिशिएट करना सिखाइए। तो मेरा काम आसान भी हुआ, मुश्किल भी हुआ। तो मैं रोज कुआं खोदता था, रोज पानी पीता था वाली स्थिति थी मेरी। तो मैं बहुत बार क्या करता था कि क्लास में बस ऐसे ही कोई विषय उनसे पूछ के उठा लेता था। जैसे कि कभी मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, आज की हमारी क्लास होगी पिकनिक, तो पिकनिक से जुड़ी बात करेंगे, ठीक है। तो मैं एक स्टूडेंट से कहता बताइए पिकनिक पर कहाँ जाएंगे, तो वो कहेगा मैं पिकनिक पर टोक्यो टावर जाऊंगा। फिर मैं दूसरे से कहता था अब बताइए कि टोक्यो टावर कहाँ है, तो फिर वो कहेंगे कि टोक्यो टावर जापान के टोक्यो शहर के उस हिस्से में है, हम इस ट्रेन से जा सकते हैं। इस तरह से हम एक के बाद एक वाक्य विन्यास जोड़ते चलते थे। और फिर मैंने सोचा कि ये लोग बातचीत करना कैसे सीखेंगे। तो 2003 से मैंने एक प्रयोग शुरू किया। मैं फर्स्ट ईयर के छात्रों को जो तोतली भाषा में हिंदी बोलना सीखते थे उनको भारत लाता था। 10 साल तक बल्कि 11 साल तक मैं जापान के स्टूडेंट्स का ट्रिप हिंदुस्तान लाता था और उनको दिल्ली, आगरा, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, कलकत्ता, लखनऊ इन शहरों में ले जाता था, हरिद्वार ले जाता था गंगा स्नान और वो सब आरती देखने के लिए। और उस समय आकर के वे लोग जो क्लास में थोड़ी हिंदी सीखी होती थी धीरे धीरे उसका प्रयोग करते थे, तोतली वाणी में करते थे, लेकिन एकदम परफेक्ट हो रहे थे। तो मैंने ये कहा कि देखिए अगर आपको तैरना सीखना है तो पानी में जाना होगा, अगर हिंदी भाषा को बोलना सीखना है तो हिंदुस्तान आना होगा। तो वो हिंदुस्तान आते थे और इस तरह से काम होता था। तो ये 10 साल मेरे बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही अच्छे थे जीवन के। जापान एक बहुत सुंदर देश है, लोग बहुत सांस्कृतिक हैं, कोई अपराध नहीं है, साफ सुथरा है। तो मैंने 10 साल तक उन लोगों के साथ मिलकर के काम किया, बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की, इन लोगों को विश्व से जोड़ दिया जापान को। इससे पहले लोग नहीं जानते थे दुनिया के कि जापान विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ 1908 में हिंदी पढ़ना शुरू हुआ। अभी तक लोग कहते हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाई जाती है या बर्कले यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाई जाती है, वो पुराने विश्वविद्यालय हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय जापान का टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज है, जिसमें 1908 से हिंदी पढ़ना शुरू हुआ। तो एक ये बात सामने आई। तो ये सारे काम विदेशों में हिंदी प्रचार प्रसार से जुड़ करके हैं। और जब मैं ट्रिनिडाद में था तो मैं सूरीनाम गया, मैं गयाना गया तो वहाँ के लोगों से भी मिला और वहाँ भी बातें हुई। तो कुल मिलाकर के मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक हूँ जिनको इस तरह काम करने का अनुभव मिला है। तो ये जो बात आपने विदेशों की थी उसके बारे में मैंने काफी विस्तार से कर दिया है, लेकिन मैं बरुआ जी से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि हमारा जो कोर्स है उसमें हम लोग तीसरी कसम भी पढ़ते हैं, उसने कहा था कहानी पढ़ते हैं, मैला आंचल पढ़ते हैं, बच्चन जी की आत्मकथा क्या फूलू क्या याद करूं पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें जब पढ़ते हैं तो कुछ चीजें मेरे मन में आई कि आज हमारे किसी भी भाषा को पढ़ने वाले लोग पढ़ते हुए ये सोचते हैं कि उनको नौकरी कैसे मिलेगी। तो वो डिग्री लेने के लिए या कोर्स करने के लिए पढ़ते हैं, उसको एप्रिशिएट करने के लिए नहीं पढ़ते जी। लिटरेचर एक ऐसी चीज है कि वो अगर आप पढ़ें, परीक्षा दें, नौकरी भी मिलेगी, लेकिन अप्रिशिएट करना भी सीखें, क्योंकि उस साहित्य को पढ़ने से हम अपने जीवन को समृद्ध करते हैं।
लिटरेचर मनुष्य के मनोभावों को व्यक्त करने वाला है, उसकी संवेदना को बढ़ाने वाला है, उसकी करुणा के पाठ को पढ़ाने वाला है। इसलिए उसको जान करके पढ़ करके हम अपने जीवन में भी उन तत्वों को लाते हैं और एक अच्छे इंसान बनते हैं। तो हमारे छात्र लोग जब कक्षा में साहित्य पढ़ें और जो उसे पढ़ाए वो उनमें रुचि पैदा करे, ऐसा मेरा मानना है। हमारे एक अध्यापक हमें पढ़ाते थे जो बाद में हैम्बुर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होकर चले गए, जर्मनी में ही रहते हैं अभी भी। वे हमको क्लास में पढ़ाते थे 1 पेज, लेकिन बाकी का समय हमें ये बताते थे कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो आज हमारी शिक्षा पद्धति में परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती चली गई है, लेकिन उसकी समझ पैदा नहीं कर रहे। जैसे कि वो हमें गोदान पढ़ाते थे, आप भी प्रेमचंद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन गोदान में प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखा है इसकी खासियत क्या क्या है ये लोग नहीं जान पाते। वो सिर्फ उसकी आलोचना करेंगे कि होरी का चरित्र कैसा है, धनिया का चरित्र कैसा है, मालती का कैसा है, मेहता का कैसा है, लेकिन उनको ये बताने वाला कोई नहीं है कि प्रेमचंद का गोदान उपन्यास उनके अन्य उपन्यासों से कैसे अलग है। एक सबसे बड़ी बात गोदान के बारे में ये है कि गोदान जब लिखा गया था तो प्रेमचंद बंबई से लौट करके आए थे, तब मुंबई बंबई कहलाता था। बॉम्बे एक सिनेमा में गए थे, सिनेमा का स्क्रिप्ट लिखते थे, 1-2 साल वो वहां रहे थे, लेकिन उनका मन नहीं लगा और लौट आए। फिर उन्होंने गोदान लिखा। तो गोदान लिखने में जो फिल्म की टेक्निक है स्क्रिप्ट की, वो उनको पता लगी और उन्होंने उस पर काम किया। तो गोदान का जो भी सीन है, जो भी कहानी लिखी गई है, वो छोटे छोटे सीन है, सिन्योरियो जिसे कहते हैं। ये फिल्म की स्क्रिप्टिंग के लिए जरूरी है। आपके यहाँ फिल्म वगैरह भी पढ़ाई जाती है, तो उन लोगों को समझना चाहिए कि जिस कहानी को जब हम फिल्म में बदलते हैं तो वो सीन में बदलती है। एक एक सीन को करके आप एडिट करके जोड़ देते हैं। इसलिए फिल्म की शूटिंग में ये भी फायदा है कि जो कहानी का अंत में आने वाला सीन है वो भी पहले दिन हो जाता है, और जहां से कहानी शुरू हो रही है वो शायद अंत में होता है, तो बदल जाता है क्योंकि वो सीनियोरीज में है। तो प्रेमचंद ने गोदान जो लिखा उसका शिल्प उनके पुराने सेवा सदन, कायाकल्प या प्रेमाश्रम उपन्यास से अलग है। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद को एक नई टेक्निक का पता चला और उन्होंने फिर उस तरह से लिखा। दूसरी महत्वपूर्ण बात गोदान के लिए जो लोग नहीं बताते वो ये कि गोदान में गांव और शहर की कहानी साथ साथ है। अब गोदान में गांव और शहर को क्यों पास रख रहे हैं जैनेंद्र? शुरुआत में जो आलोचना की लोगों ने वो यही की कि ये कहानी एक 2 मंजिले मकान में रहने वाले लोगों की है, जो आते जाते कभी मिल जाते हैं, हेलो हाय कर लेते हैं, लेकिन दोनों का कोई संबंध नहीं। इसीलिए विष्णु प्रभाकर ने गोदान उपन्यास का एक शॉर्ट वर्जन तैयार किया था, इसका नाम था होरी। उन्होंने सिर्फ कहानी ली गांव की, शहर को छोड़ दिया। लेकिन प्रेमचंद हमारे बदलते हुए समाज की उस संरचना को बताना चाहते हैं जो गांव और शहर से जुड़ती जा रही है, वो दूर नहीं है। और दूसरी बात वो ये कहते थे कि ये जो महाजनी सभ्यता है, कैपिटलिज्म की जो बात है, वो किस रूप में बदलती जा रही है। गोदान के अंदर सारी समस्या जो है वो महाजनों की है, पैसे की है, वो किसानों का शोषण करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बैंक आगे आ रहे हैं, बैंकर्स भी उनके राज साहब के यहाँ आते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी के लोग भी आते हैं, अखबार के वो संपादक बिजली भी आते हैं। ये सारे लोग हमारे समाज के उन पक्षों को व्यक्त करते हैं जो आज का समाज है। उनका जो संपादक बिजली है वो गरीब किसानों की तरफ से चिट्ठी लेके जाता है राय साहब के पास कि मैं अखबार में छाप रहा हूं, आप बहुत गलत कर रहे हैं। और राय साहब कहते अच्छा ऐसा करने जा रहे हो, कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम ये तो बताओ तुम्हारा अखबार कितना बिकता है। तो पंडित जी का दुख, खर्चा होता है ज्यादा, बिकता नहीं है। तो कह रहे तुमने मुझे पहले नहीं बताया। अच्छा ऐसा 500 कॉपियां तुम्हारे अखबार की मैं खरीद लूंगा। उन्होंने वो चिट्ठी फाड़ के फेंक दी। वो गरीब किसानों का दर्द उस अखबार में कभी नहीं चला। क्या ये आज नहीं है?
आज हमारा अखबार जो भी देता है या मीडिया जो भी दिखाता है उसके अपने एजेंडे हैं, वो हमारे एजेंडे को लेकर नहीं चल रहा है। प्रेमचंद ने कब लिखा ये? 1936 के आसपास, 30 और 36 के बीच में लिखा गया है, तब वो उन बातों को कह रहे हैं। आज हर बैंक आपसे कहता है लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए, लोन का रेट कम हो रहा है, इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो पहले जो महाजन लोन देते थे और ब्याज वसूलते थे, वो सारा काम बैंक कर रहे हैं। तो प्रेमचंद यहां भी सच है। तीसरी बात, प्रेमचंद के जो नायक है होरी, वो किस जगह मरता है? खेत में नहीं, वो उस सड़क पर पत्थर कूट रहा है जो सड़क उसके गांव को शहर से जोड़ने वाली है। उस सड़क जो बन रही है गांव को शहर को जोड़ने के लिए। और ये ध्यान रखिए कि गोदान जो किसान की कहानी है, होरी किसान है। किसान इसलिए कि किसान होने में मर्याद है, मर्यादा है, सम्मान है। वो मर्यादा वाला किसान अब एक गरीब मजदूर बन गया, किसानी छूट गई, उसके खेत बिक गए, खेती हर मजदूर खत्म हो रहा है। और वो जो सड़क बन रही है गांव शहर को जोड़ने वाली, उस पर वो पत्थर कूटने वाला मजदूर है, जहां लू लगती है और वो मर जाता है। प्रेमचंद सांकेतिक रूप से हमें बता रहे हैं कि जब ये सड़क गांव से शहर जुड़ जाएगी तो हमारे गांव बढ़ते चले जाएंगे। होरी की मौत उस पुरानी ग्रामीण व्यवस्था की भी मौत है जो इस नई व्यवस्था के आने पर टूट रही है। आज आप देख लीजिए क्या हो रहा है। तो प्रेमचंद इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपने उस उपन्यास के कलेवर में कितनी चीजें दी हैं जो आज हो रही हैं। मालती और मेहता का प्रेम संबंध है, शादी तो नहीं करते वो, ये लिव इन रिलेशनशिप ही तो है, उस तरह का भाव उसके अंदर आ जाता है। तो कितने संकेत प्रेमचंद हमें दे रहे हैं। ये बात अगर हम अपने स्टूडेंट्स को बता सके तो उनको उपन्यास पढ़ने का मजा पड़ जाएगा, उनकी रुचि बढ़ जाएगी, उनकी सोच में फर्क आएगा। तो आज हमारी शिक्षा पद्धति के अंदर हमारे कोर्स में आपके सामने लिमिटेशंस हैं कि आपने पेपर तैयार किया और उसको कॉरेस्पॉन्डेंस से भेज दिया है, आप नहीं बता पाते। लेकिन अगर ये बातें हम अपने छात्रों को बता सकें तो उनकी पढ़ने में रुचि बढ़ेगी, उनको समझ में आएगा कि अरे हमने ऐसा सोचा ही नहीं था। तो जिस पॉइंट पर आप ये सोचने लगते हैं कि हमने ऐसा नहीं सोचा, वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अब उसने कहा था कहानी की बात आप करते हैं, उसने कहा था कहानी कहां से शुरू होती है? कहानी में शुरुआत होती, टांगे वाला जा रहा है और वो कुछ गालियां भी दे रहा है अमृतसर के बाजार से, और एक लड़की उसके टांगे के आगे आ जाती है और एक लड़का उसे बचाता है। कहानी यहां से शुरू होती है। ऐसा कहते हैं सब लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहानी लिखी गई थी आज से 100 साल से भी ऊपर हो गए, 106 साल हो गए, 1919 में, 1919 में लिखी गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जुड़ी कहानी। और हिंदुस्तान में पिछले दिनों किसी से बात हो रही तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पास हमारी कोई कहानी ही नहीं है, कोई रचना नहीं है। तो हमने कहा कि उसने कहा था उसी के जर्मन फ्रंट पर हमारा हिंदुस्तान का लहना सिंह लड़ रहा है। तो वो कहानी असल में फ्लैशबैक की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बड़ाई या बड़प्पन ये था कि उन्होंने आज से 100 साल के पहले कहानी में फ्लैशबैक लेकर के आए थे। तो वो लहना सिंह जो जर्मन मोर्चे पे लड़ते हुए घायल हो गया है, उसने कहा था अपनी जो लड़की फ्रेंड है या दोस्ती बनने भी नहीं पाई थी, उसकी ने एक बात कही थी कि मेरा पति, मेरा लड़का फौज में तुम्हारे साथ जा रहा है, इनकी रक्षा करना। उसने कहा था कि इनकी रक्षा करना, तो मैं इनकी रक्षा करूंगा। ये कर्तव्य का भाव उसके मन में है। इसलिए जब गोली लगती है उन दोनों को या हमला होता है, अपनी गोली को भूल जाता है और उनको पहले हॉस्पिटल भिजवाता है, और वो धीरे 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 मौत की तरफ बढ़ रहा है। तो उसे वो पूरी चीजें याद आती है। तो कहानी पूरी फ्लैशबैक है। और कहानी शुरू असल में तो होती है उस वाक्य से, आप पढ़िएगा दोबारा उसको। लहना सिंह कहता है वजीरा पानी पिला दे। वो पानी पी रहा है और फिर याद कर रहा है, फिर बेहोश हो जाता है। तो ये कहानी का अगर ये जो शिल्प है, ये अगर हम अपने स्टूडेंट को बताएं तो कहानी का आनंद उसको और ज्यादा बढ़ जाएगा।
मेला आंचल जब लिखा था फणीश्वरनाथ रेणु ने, तो कुछ छापने वाला नहीं। उनकी जो दूसरी पत्नी थी लतिका जी, उन्होंने अपने गहने बेचकर उस पैसे से उसको छपाया था, और वो उपन्यास ऐसे ही पड़ा हुआ था। उस उपन्यास को उस जमाने के एक बड़े लेखक ने पढ़ा, तो उन्होंने उसकी बड़ी अच्छी समीक्षा लिखी, तब लोगों का ध्यान गया। तो दिल्ली के राजकमल प्रकाशन के जो काम करने वाले थे ओम प्रकाश, वो और सरस्वती प्रेस जो प्रेमचंद जी की थी, उनके लड़के अमृत राय, ये लोग पहुंचे पटना ये उपन्यास हमें दूँ। अब रेणु जी परेशान हो रहे हैं कि किसको दूं। तो अंत में उनकी पत्नी ने पूछा, भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों परेशान हो रहे हो? बोले ये दो लोग बैठे हुए हैं, कहते हैं हम उपन्यास को हम लेना चाहते हैं, हम लेना चाहते हैं। तो लतिका जी ने कहा कि तुम किसको देना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा मन है कि राजकमल प्रकाशक को। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो तुम कह रहे हो वही होगा, क्योंकि उपन्यास मेरे पैसे से छपा है, इसलिए इसका निर्णय मैं करूंगी। और उन्होंने बाहर आकर के कहा, देखिए आप लोग बैठे हैं, आए हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन ये राजकमल जी को जाएगा, राजकमल प्रकाशन को जाएगा। तो रेणु का वो उपन्यास फिर राजकमल जी छपा और ऐतिहासिक उपन्यास हो गया। तो ऐतिहासिक उपन्यास नहीं, मतलब इतिहास बन गया वो उपन्यास। तो ये जो सारी बातें हैं, हम अगर अपने बच्चों को बता पाए तो उनको उसका आनंद कुछ और होगा। ये बहुत जरूरी है हमारे शिक्षण व्यवस्था में, ऐसा मेरा मानना है। रही बात जो किताब आपने दिखाई, आज 7 अगस्त है, कल 6 अगस्त थी और इस किताब का विमोचन हुआ यहाँ पर। असमिया भाषा में इसका अनुवाद हुआ है। इसके बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। सबसे पहले ये जापानी में ही हुआ, फिर तमिल में हुआ, और अंग्रेजी में हुआ, फिर तमिल में हुआ, फिर कोंकणी में हुआ, फिर पंजाबी में हुआ। इस तरह से इसके अलग अलग अनुवाद होते रहे। अब असमिया में हो गया और अगले 7 सितंबर को इसका अनुवाद बांग्ला में होने जा रहा है। मेरा इस बार गुवाहाटी आना एक विशेष संयोग से जुड़ा हुआ है। मेरी एक किताब जिसके बारे में मैंने अभी बताया, हिरोशिमा की याद एवं अन्य कविताएं, उसका असमिया भाषा में अनुवाद प्रकाशित हुआ और कल उसका विमोचन हुआ। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहली बार एटम बम गिरा था, और कल जो तारीख निकल गई है, ठीक 80 साल पहले वो बम गिरा। और आज से 2 दिन के बाद 9 अगस्त को नागासाकी पे दूसरा बम गिरा था। इस तरह से 2 दिन के बाद का जो तारीख है, 80 साल पहले क्या हुआ दुनिया के सामने सब जानते हैं। असल में हुआ ये था कि मैं जब जापान गया 2002 में, तो मेरा मन था हिरोशिमा इधर जाने का। मुझे मौका मिला 2004 में। 2004 में जब मैं हिरोशिमा गया तो वो सब देख करके मैं बहुत दुखी, कोई भी होता है। उन्होंने वो पूरा एक म्यूजियम बनाया है, जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा गोल घेरा बना करके बताया है कि ये 1.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कुछ भी नहीं बचा, पूरा पेड़ इतना सा भी नहीं दिखाई दिया, सब खत्म होकर पूरा मैदान हो गया। और जो लोग उसके चपेट में आए हैं वो तो जल के भाप बन गए, उनकी हड्डी भी नहीं मिली। जो लोग उसकी पेरिफेरी में बाहर थे, उसके असर से, रेडिएशन के से उन्होंने बाल पे हाथ लगाया तो पूरे बाल हाथ में आ गए, सारे शरीर पर फफोले हो गए। और उन्होंने यूं हाथ पकड़ा तो उनका मांस नीचे लटक गया, सब चीज खत्म होती चली गई। पानी नहीं है, प्यास लग रही है, चिल्ला रहे हैं पानी के लिए तो पानी नहीं है। एक बहुत जोर की बारिश होती है, क्योंकि जो बम फटा वो ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और जो बादल बने फिर उससे बारिश हुई, काली बारिश उसे कहते हैं, ब्लैक रेन। उस रेन के पानी की एक एक बूंद के अंदर रेडिएशन था, और जिसके शरीर पर वो बूंद गिर गई वही कैंसर ग्रस्त हो गई। तो सवाल, 1 मिनट से भी कम समय के अंदर 70-80 हजार लोग भाप बन के उड़ गए। अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय।
और जो उसके बाद की जो पेरिफेरी थी उसके अंदर ये लोगों की खाल निकल रही है, आग निकल रही है, मकान टूट गए, कांच टूट टूट के उड़ रहे हैं, वो गले में घुस गए, सबके खून बह रहा है, ये सब त्रासदी के दृश्य उन्होंने वहां दिखाए। तो वहां जितने विजिटर थे दुनिया भर के, बहुत लोग आते हैं देखने के लिए, सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे को देख करके। हम भी विगलित हो गए। लौट के आए तो कई रात नींद नहीं आए, वही चीज घूमती रहे कि कितना कष्ट उठाया इन लोगों ने, क्यों, इसलिए तब पता नहीं था कि क्या इसके पीछे की बैकग्राउंड है, क्या आधार है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं अपनी क्लास के अंदर रोजाना कोई एक विषय लेता था और उस पर कक्षा में बातचीत करता था। तो मैंने सोचा मैं जापान में हूँ, हिरोशिमा की दुर्घटना त्रासदी हुई है, ये सारे बच्चे उसको जानते हैं, तो हम कुछ छोटे छोटे वाक्य बना करके आज इसको एक विषय बनाते हैं। तो मैंने कहा कि आज हम हिरोशिमा की यात्रा करके एक बातचीत का क्लास करेंगे। एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा, सर हम हिरोशिमा पर कोई बात नहीं करना चाहते, हम हिरोशिमा को याद नहीं रखना चाहते, कृपया आप इस पर कोई बात न करें। मैं चुप हो गया। ये भारत तो नहीं था कि मैं कहता नहीं चुप बैठ जाओ, मैं गुरु हूं, मैं बोल रहा हूं। ये जापान था, तो हमने उनकी बात का सम्मान करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, हम नहीं बात करते। लेकिन मैं कई दिनों तक परेशान रहा कि ये कैसी कौम है, कैसी जाति है, कैसे लोग हैं जो इतनी बड़ी दुर्घटना को याद नहीं रखना चाहते, भूल जाना चाहते हैं। आज इतने साल बीत जाने के बाद भी हम लोग पार्टीशन की बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बनने की बात करते हैं। हमारा कितना बड़ा साहित्य है जो पार्टीशन से जुड़ा हुआ है, और ये लोग कहते हैं हम याद नहीं रखना चाहते। तो मैं बहुत परेशान हुआ। तब एक रात को सोते जागते मेरी पहली कविता की आवाज आई, और वो ये थी, बचाए रखना जरूरी है हिरोशिमा की याद, ये याद ही रोकेगी और हिरोशिमा होने से। और सच मानिए, मेरा ये दृढ़ विश्वास है, औरों का भी है, कि जब तक हिरोशिमा के की त्रासदी की स्मृति हम लोगों में रहेगी और कभी एटम बम चलेगा नहीं। जिस दिन हम इसे भूल जाएंगे उस दिन एटम बम इतने चलेंगे कि कोई नहीं बचेगा। ये मेरे मन की बात थी। तब ये कविताएं लिखना शुरू हुई, और ये कुल 5 कविताएं हैं। और इसको लेकर के मैंने जब ये किताब बनानी चाहिए तो बहुत छोटी सी बन रही थी, तो मैंने सोचा इसके अंदर मैं हिरोशिमा के चित्र लगाऊंगा, जो मेरी कविता में भी कुछ दृश्य आ रहे हैं तो उनको व्यक्त करने वाले। तो हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े कलाकार हैं जिनका नाम है अशोक भौमिक, वो मेरे मित्र हैं। हम उनसे 1 साल 2 साल बड़े होंगे, लेकिन मित्र हैं। तो उनसे मैंने कहा कि दादा, मैं ये किताब छापना चाहता हूँ और इसमें हिरोशिमा के चित्र लगाऊंगा। तो उन्होंने कविताएं पढ़ी और उनसे कहा कि नो, कोई चित्र नहीं लगेगा। मैंने कहा दादा, बहुत छोटी सी किताब बनेगी, फिर तो ये 5 कविताएं हैं कुल, और ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि मैं 100 कविताएं लिख लूं। बोला नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुमको अपनी पेंटिंग्स दूंगा। तो ये जो किताब है, इसके अंदर एक तरफ भौमिक दादा की पेंटिंग्स हैं और उसके साथ मेरी कविता की लाइनें हैं जो इन पेंटिंग्स से कॉरस्पॉन्ड करती हैं। ये सारे दृश्य उस त्रासदी को व्यक्त करते हैं, और ये ब्लैक एंड व्हाइट में है। उन्होंने ही कहा कि इसका कवर भी काला बनेगा। तो ये काली किताब है। दुनिया में बहुत सारी किताब है, लाल किताब भी है, ये काली किताब है। ये हिरोशिमा की त्रासदी को बताने वाली काली किताब है, और इसके अंदर उनकी पेंटिंग्स हैं और मेरी कविताएं हैं। इस तरह से ये किताब, छोटी सी 5 कविताएं इसमें आई हैं, और जो लगभग 80 पेज की किताब ये बन गई है। जब इस किताब को मैंने और लोगों तक दिया तो वे सब भी मेरी तरह से ही मर्माहत हो गए इन कविताओं को पढ़ करके, और उन्होंने स्वयं ये इच्छा व्यक्त की कि हम इसका अनुवाद करना चाहते हैं। सबसे पहले
चेन्नई के तमिल भाषा के बहुत बड़े लेखक और जर्नलिस्ट हैं मिस्टर मालन, उन्होंने इसका भारतीय भाषाओं में शुरुआत वहाँ से हुई। फिर एक हैं बहुत बड़े मलयालम के साहित्यकार हैं जिनको ज्ञानपीठ को हमारा के बिरला पुरस्कार भी मिला, प्रभा वर्मा, उन्होंने इसका मलयालम में अनुवाद किया कई कविताओं का। फिर किसी ने पंजाबी में अनुवाद किया। इस तरह से ये 7-8 भाषाओं के अंदर इसका अनुवाद हो गया। और मैं समझता हूँ कि हिरोशिमा का विषय इस पूरी हमारी सभ्यता के लिए एक ऐसा विषय है कि जिसको कोई भी सुनता है, समझता है, और इस तरह से वो कृतियां लिखी जाती हैं, वही इसका महत्व है। अब अगले महीने की 7 तारीख को इसी किताब का बांग्ला अनुवाद का भी विमोचन होने वाला है, और इसका एक अनुवाद गुजराती में भी तैयार किया गया है दीपक रावल जी के द्वारा, वो भी छपेगा, तब सामने आएगा। तो ये हिरोशिमा की कविताओं के बारे में जिसका जिक्र लोग सामने किया, उसकी एक छोटी सी कहानी मैंने आपको बताई कि किस तरह से ये सब लिखा गया है, और ये अब आप लोगों के सामने है। हाँ जी सर, आपने साक्षात्कार में काफ़ी चीज़ें कही और काफ़ी चीज़ें हमारे अंदर समाहित हो गई। जिस तरह से आपने हिरोशिमा की बात कही और फिर हिंदी साहित्य से संबंधित गोदान की बात कही, उसी तरह सर मैं जिस क्षेत्र से हूँ या हम जिस क्षेत्र से, या हमारा जो ये विश्वविद्यालय जिस क्षेत्र में है, उन क्षेत्र में या इस राज्य में, या जो हमारे 7 सिस्टर कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट को 7 सिस्टर कहा जाता है, इन 7 राज्यों में हमारी हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत कम है या ना के बराबर है। कई जैसे अरुणाचल हो गया, आपका मिजोरम हो गया, इन सारे राज्यों में आप जो हिंदी है वो कहीं ना कहीं एक छुप सी गई है, कहीं ना के बराबर है। तो इस संबंध में मैं आपसे एक जिक्र ही करना चाहूँगा कि किस तरह हम हिंदी को, जैसे उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो या भारत के अन्य राज्य हो, वहाँ पे हिंदी की प्राथमिकता दी जाती है हिंदी को, लेकिन हमारे यहाँ हमारे यहाँ के राज्यों में हिंदी को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो हिंदी को प्राथमिकता देने के लिए हम क्या भविष्य में क्या कर सकते हैं, जिससे हम ये गौरव के साथ कह सके कि हिंदी हमारी भाषा है और हम इसे प्राथमिकता दे सकते हैं। जबकि भाषा हमारे अपने अस्तित्व की चीज है, हमारी अपनी पहचान की चीज है, हमारी अपनी अस्मिता की चीज है, लेकिन इसको जोड़ दिया गया भाषाई राजनीति से। जैसे कि कह दिया गया कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, तो गलत है। भाषा का कोई अपनी जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है। भाषा वो है जो हम बोलते हैं, जिससे हमारे भावना व्यक्त करते हैं, हम अपनी बात पहुंचाते हैं। मथुरा में मेरा जन्म हुआ, मथुरा में रहने वाला हर मुसलमान ब्रजभाषा बोलता है। अगर उसके सामने मैं जरा उर्दू बोल दूं तो समझ नहीं पाता। लेकिन कुछ राज्यों के अंदर मुसलमानों के वोट लेने के लिए कह दिया गया उर्दू मुसलमानों की भाषा है। तो एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये कि भाषा कोई भी हो, उस भाषा का साहित्य, उस भाषा का संगीत, उस भाषा का लोक साहित्य, ये जो सौंदर्य है, जब वो हमको आकृष्ट करता है तो भाषा फ्लरिश करती है, बढ़ती है। अगर नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बीच में भाषा हिंदी दिल्ली की राजकीय भाषा या राजभाषा के रूप में अगर देखेंगे तो मुश्किल है, लेकिन अगर वो एक समृद्ध भाषा के रूप में देखेंगे, ऐसी भाषा जो उनके देश की, उनकी जाति की, उनके आसपास के प्राकृतिक परिवेश की बात कहने वाली भाषा है, जिससे वो जुड़ सके, तो ज्यादा अच्छा होगा। हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, शेक्सपियर पढ़ लेंगे, मिल्टन पढ़ लेंगे, हम रॉबर्ट ब्राउनिंग पढ़ लेंगे, कीट्स पढ़ लेंगे, शैले पढ़ लेंगे, लेकिन क्या हम उसको उतना ही समझ पाएंगे जितना हम तुलसीदास को, सूरदास को समझ पाते हैं? नहीं समझे, क्योंकि वो दूसरी संस्कृति का फूल है, वो हमारी संस्कृति का नहीं। तो जब हमारे देश के अंदर रहने वाले लोग किसी भी प्रदेश के हों और उनकी जो अपनी भाषा है, उस भाषा के सौंदर्य को जब वो समझेंगे तो उनके मन से ये सारे मैल हट जाएंगे।
उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग इतनी अच्छी चीजें जानते हैं, लिखते हैं, वो उस भाषाई राजनीति से दूर जाकर के अपने को एक विश्व मानव के रूप में, एक अखिल भारतीय रूप में देखना चाहेंगे, तो हिंदी उनके लिए मुश्किल नहीं लगेगी। और मैं जहां तक जानता हूं, नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हिंदी बोलते हैं काफी अच्छी हिंदी बोलते हैं, उनको काफी समझ है हमारे और बहुत सारी जगहों के मुकाबले में। लेकिन उनके मन में ये विश्वास आना चाहिए कि हम जो भाषा बोल रहे हैं वो ठीक है। और देखिए, कोई ठीक भाषा नहीं होती, कोई गलत भाषा नहीं। भाषा वो है जिससे हम अपनी बात आप तक पहुंचा सके। तो जब आसाम में रहने वाला या अरुणाचल में रहने वाला भी अगर अपनी टूटी फूटी भाषा में भी अपनी कोई बात कह देता और मेरी समझ में आ जाता है, तो परफेक्ट बात, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज हम अंग्रेजी की बात करते हैं, कितने लोग हैं जो उसके सौंदर्य को समझते हैं? समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर जिस फूल की बात है वो हमारे यहाँ तो बहुत कम होता है। हमारे यहाँ जो फूल होता है, जो पत्ती होती है, उसकी बात करेंगे जल्दी समझ में आएगा। समझा मेरी बात को? हाँ, तो ये जो परिवेश है, इसको समझने के लिए हम लोगों को जो भाषाई राजनीति है उससे अलग जाना पड़ेगा। और जिस दिन हम उससे अलग हो जाएंगे, कोई भी भाषा हो, उसका सौंदर्य हमारे सामने आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जब मैं बाहर विदेशों में जाकर के हिंदी पढ़ता पढ़ाता हूँ, तो वे सारे लोग तो किसी भाषाई राजनीति से नहीं जुड़े हुए, वो भारत को समझना चाहते हैं, इसलिए वो सीख रहे हैं। वो हिंदी फिल्मों के गाने सुनते हैं, जगजीत सिंह की गजल सुनते हैं, उन गीतों का अर्थ समझना चाहते हैं, और जब उसको समझते हैं तो प्रसन्न होते हैं। उसी तरह से क्या हमारे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में भारतीय हिंदी फिल्में नहीं चलती हैं? चलती हैं। जब वो चलती हैं तो उनको कैसे समझते हैं? तो सवाल ये है कि हम बहुत अच्छी चीजों को, साहित्यिक चीजों को अनुवाद करके उन तक पहुंचाएं। लेकिन बहुत बार अनुवाद मित्रता के नाते भी होता है, और वो चीज बहुत ऊंची ना हो, लेकिन मित्र है तो मैंने कर दिया अनुवाद, ये भी दृष्टिकोण होता है बहुत बार अनुवाद करते हुए। लेकिन जो सार्वभौम कालजयी चीजें हैं, उनको हम विभिन्न भाषाओं से निकाल करके आगे पहुंचाते हैं, तो वो काम आते हैं। अब जैसे आपने बातचीत के शुरू में मुझसे कहा था आज कि विशाल भारद्वाज ने शेक्सपियर के नाटकों को लेकर के हिंदी में फिल्में बनाई। ट्रायलॉजी है उनकी, 3 है, मैकबेथ को लेकर के है, सोलो को लेकर के है, रोमियो जूलियट को लेकर के हैदर है शायद। अब आप ये देखिए कि उसके अंदर शेक्सपियर कहाँ है? शेक्सपियर कहीं नहीं। लेकिन जो फिनोमिना है कि किस तरह से किसी के मन में संदेह पैदा हो जाता है तो कितना घातक होता है, वो उन्होंने दिखाया। तो उन्होंने शेक्सपियर का अडॉप्टेशन नहीं किया है, मैं तो ये कहूंगा उन्होंने शेक्सपियर ने जो बात कही है उसको अपनी भाषा के अंदर अडॉप्ट किया है और उसको हमारे सामने रखा, एक अलग कहानी के द्वारा। अनुवाद का भी यही काम है। अच्छा अनुवाद अगर कभी होगा तो शाब्दिक नहीं होगा। हम बहुत बार विदेशी भाषाओं से जुड़ी हुई किताबों पढ़ते हैं, उनका अनुवाद पढ़ते हैं, उनके नाम ही याद नहीं रहते। अब मैं वॉर एंड पीस पढ़ता हूं तो उसके जितने भी नाम है मुझे याद ही नहीं रहते, तो मैं तो टॉलस्टॉय को नहीं समझ पाता हूं। अगर उन नामों को भारतीय नामों में बदल दिया जाए, कहानी वही रहे, तो जल्दी समझ में आएगी, आपको नाम याद रहेंगे कि आप जोड़ सकेंगे, अच्छा ये यही वो सेना नायक था। तो मेरे साथ क्या हुआ कि सन 2009 या 10 की बात होगी, नेशनल बुक ट्रस्ट की डायरेक्टर नुसरत हसन कहीं थी जापान, वो यूनेस्को की किसी मीटिंग के लिए। तो हमारे किसी मित्र ने कहा कि वो आ रही हैं, तो आप जरा इनकी मदद कर दीजिए थोड़ा। तो हमने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि रिजवान जी, एनबीटी के पास जापान की लोक कथाओं की कोई किताब नहीं है, आप कुछ कीजिए। तो मेरा ध्यान उस तरफ गया। मैं जापानी भाषा नहीं जानता, मैंने अपने प्रोफेसर से कहा कि मुझे ऐसा करना है, तो उन्होंने मुझे अंग्रेजी में जापानी भाषाओं के जो अनुवाद थे वो ला के दे दिए। एक ही कहानी है, अगर उसका एक अनुवाद 4 पेज का है, उसी कहानी का 40 पेज में भी है। मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ कि ये क्या बात है।
वहां के नोबेल लॉरिएट ने भी उस कहानी का अनुवाद किया है और बिल्कुल सामान्य ने भी किया। बच्चों के लिए वही कहानी 16 पेज में आ गई और जो किशोरों के लिए लिखी गई है वो किताब 40 पेज में हो गई। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ कि किसका अनुवाद करूं। तो मैंने उन सबसे बड़ी प्रसिद्ध कहानियों के अलग अलग वर्जन तलाशे, उनको पढ़ा, खूब पढ़ा, और पढ़ने के बाद मैंने उन सारी कहानियों के अपने अंदर पचा लिया। फिर लिखना शुरू किया। कहानी जापान की है, जापान की लोक कथा की है, लेकिन उसका पूरा जो मुहावरा है वो मेरा अपना हिंदी का मुहावरा है। जैसे कि अंग्रेजी में कहा जाता है टिट फॉर टैट, अब उसका हिंदी में क्या मुहावरा है? जैसे को तैसा। तो अगर ऐसी कोई कहानी है जिसके अंदर जापान में किसी घटना का लोक कथा में ऐसा वर्णन है कि जिससे उसने बदला लिया है, तो हमने उसका अनुवाद नहीं करके उस रूप में नहीं किया, हमने उसे अपने हिंदी के मुहावरे में कहा जैसे को तैसा। या किसी ने बुरा काम किया, उसको बुरा फल मिला, तो हमने कहा करनी का फल। तो उसको हमारी जो भाषा है उसका संस्कार देने की कोशिश की। कहानी का वितान जापान का है, लेकिन हमने अपने तरीके से कहा। तो अनुवादक जो हमारे यहाँ हैं उनको ये समझना चाहिए कि आज शाब्दिक अनुवाद का महत्व नहीं है, पहले भी नहीं था। अच्छे अनुवाद हमेशा भावानुवाद होते हैं, भावों का अनुवाद होता है, भावनाओं का अनुवाद होता है, और भाषा हमारी भावना पर आई है। जैसे कि शेक्सपियर ने जो बात कही है उसको विशाल भारद्वाज ने अपने कैरेक्टर्स के द्वारा दूसरी तरीके से पेश किया। ठीक है, धन्यवाद महोदय जी, आपने अपना वक्त देके हमारे और अपने विचारों को यहाँ व्यक्त करके हमें और हमारे विश्वविद्यालय को काफ़ी एक जानकारी प्राप्त करवाई। और आगे भविष्य में आप हमारे विश्वविद्यालय में आते रहे। आपकी हर एक बात, जैसे आपने हिरोशिमा की बात की, चाहे आपने हिंदी साहित्य के इतिहास को विदेशियों में किस तरह से लागू की जाती उनके बारे में भी कहा। इससे हम अज्ञान जो हमारा अज्ञान चीजें हैं उससे हमें नया एक अनुभव प्राप्त हुआ, जिसके कारण हमारे या आने वाले भविष्य में जो बच्चे हैं वो किस तरह से आपकी जो शिक्षा मार्ग है उसको लेकर आगे बढ़े। इसका भी उपदेश आपने इन चंद समय पे दिया है। धन्यवाद आपसे और एक बार कि आप हमारे इस तरह से आप हमारी यूनिवर्सिटी पे आए और इस तरह से नए नए विचारों को, नई नई बातों को यहाँ के जिक्र करें। धन्यवाद आपका भी, आपने मुझे अवसर दिया कुछ कहने का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो नए छात्र हैं उन सबको भी इन बातों में कुछ आनंद आएगा। आपकी यूनिवर्सिटी का, आप सब लोगों का, आपकी पूरी टीम का भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे एक अवसर दिया। बहुत धन्यवाद। ইয়াত যিসকলে আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি উপভোগ কৰিলে তেখেতসকলে বিভিন্ন ভাষাৰ পৰা অনুবাদ কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু অনুবাদৰ লগত জড়িত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, আৰু তাৰ লগতে আজি যিগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগত আমি এই আলোচনাটোত মিলিত হৈছোঁ, তেখেতৰ জীৱন, তেখেতৰ উপলব্ধি আৰু বিদেশ যাত্ৰাৰ সময়ত তেখেতে যি বিদ্যায়তনিক যিখিনি উপলব্ধি লাভ কৰিছে সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনাব পাৰিলোঁ। গতিকে ভৱিষ্যতেও আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি তেখেতসকলৰ উপলব্ধি লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ সমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।